Yes, good morning, students. In the part 1 and part 2, we have covered about the definition of circulation and about blood, component of blood, RBCs, WBCs, platelets. So, this was discussed in the part 1. Today, we are going to start our next very interesting and very important topic, that is blood group. Yes. Blood group is classified into mainly with the help of two factors. First is ABO system, and the second is RH system. And as we know, human contain four type of blood group: A, B, AB, and O. So there are four type of blood group, and combinedly this comes under into a system known as ABO system or ABO grouping. And on the basis of presence of antigen or absence of antigen, we will classify into RH grouping system also. If the antigen is present, then it is known as positive blood group. If antigen is absent, known as negative blood group. And we will discuss in detail in the later slides. ABO system was proposed by Karl Landsteiner. Note down the name of scientist. ABO blood group was proposed by Karl Landsteiner. And how ABO blood group system is designed and what is the mechanism behind the ABO system. So let's start. Mainly जो हम ब्लड ग्रुप को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन. Means if antigen is present, then we give the name of that blood group according to the antigen present. Means if A blood group is there, then A antigen is present on the cells, and if B antigen is present, then the name of blood group will be B. You can see here in the slide, blood type A contain A type of antigen on the surface. On the surface of this, you can see small spikes are there. But in blood type B, you can see the circular structure known as B antigen. So if B antigen is present, हम उसको B blood group बोलेंगे. अगर A antigen present है तो उसे हम A blood group बोलेंगे. Next, if AB antigen is there, if on the surface of cell AB antigen is present, then the blood type will be AB. और अगर हमें कोई एंटीजन ही नहीं मिल रहा सरफेस के ऊपर, तब उसको हम O ब्लड ग्रुप बोलेंगे. क्या बोलेंगे? O ब्लड ग्रुप. सपोज मेरा ब्लड ग्रुप O है, तो जब मैं अपने O ब्लड ग्रुप के सेल्स को देखूंगा तो मेरे उस O के अंदर सेल्स के अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा. अगर एक पर्सन A ब्लड ग्रुप वाला है, उसके अंदर A एंटीजन होगा. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है. So just read the lines mentioned here. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen. Mainly ABO blood group हम जो होंगे वो एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर कैटेगराइज करेंगे. And if A is present, then you can named as A blood group. It is already mentioned or discussed already. Next, yes, very important table for your exams, for competition also. यू कैन सी हमने यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप्स बनाए हैं, ए बी ए बी और ओ. और फर्स्ट जो है ब्लड ग्रुप्स के बाद हम सेकंड जब जाते हैं एंटीजन्स ऑन आरबीसीज. ए के ऊपर हम ए एंटीजन बोलेंगे, बी के ऊपर हम बी एंटीजन बोलेंगे, ए बी के ऊपर हम कोई भी एंटीजन नहीं बोलेंगे. सॉरी, ए बी के ऊपर हम ए बी एंटीजन बोलेंगे और ओ के ऊपर हम कोई भी एंटीजन नहीं बोलेंगे. ओ इज निल. यू कैन सी हेयर A contain antigen A, B contain antigen B, AB contain antigen AB, and O contain does not have any antigen. So nil is given in the box. Nil means antigen absent. Yes. फिर हमें उसका एंटीबॉडीज भी देखना होता है प्लाज्मा के अंदर. तो जो एंटीजन होता है, एंटीबॉडी उसके अपोजिट होती है, हमेशा ये याद रखना. जो एंटीजन होगा, एंटीबॉडी उसके हम अपोजिट मेंशन करेंगे. जैसे कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर जब हम एंटीबॉडी वाले कॉलम में जा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है एंटी बी. बी के अंदर हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एंटी ए. और ए बी के अंदर हम जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? निल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ए बी डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंड ओ कंटेन एंटी ए एंड एंटी बी.
तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि भाई O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है और AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। देन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने लिखना है, O इज़ यूनिवर्सल डोनर। हमने 10th क्लास में भी रीड किया था, O इज़ यूनिवर्सल डोनर। डोनर मीन्स ये सभी टाइप के पर्सन्स को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। रीज़न बिहाइंड इज दिस, आप बोलोगे कि सर O ब्लड ग्रुप जो है उसके ऊपर कोई भी O ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, O ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, सो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड ट्रांसफ़र कर देगा ईजिली, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। अब आप बोलोगे सर एंटीजन नहीं है, इसका क्या यूज़ हो रहा है। देखो लेट सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है O, ठीक है, और मेरे ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड अगर आप डोनेट करते हो किसी सेकंड पर्सन को, लेट सपोज A वाले पर्सन को मैंने मेरा ब्लड ग्रुप दे दिया, मेरा ब्लड ग्रुप था O, और O ब्लड ग्रुप जब A के अंदर जाएगा, A बॉडी के अंदर जाएगा, तो O के ऊपर कोई एंटीजन है नहीं है। मतलब मेरा ब्लड ग्रुप जैसे ही A के अंदर एंटर करेगा तो उसमें कोई एंटीजन तो है ही नहीं मेरे ब्लड ग्रुप में, तो उसकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब अगेंस्ट कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि उसमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी। अगर मेरे ब्लड ग्रुप में, फिर हम बोलते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप में एंटीजन हो, तो अगर मेरे ब्लड ग्रुप में एंटीजन हुआ A, ठीक है, और मैं दे रहा हूँ O को, A ब्लड ग्रुप है मेरा और अगर मैं O को दे रहा हूँ, तो A एंटीजन जब O ब्लड ग्रुप में जाएगा तो वो रिएक्शन क्रिएट करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर मेरे ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं है तो मैं ईजिली सबको ब्लड ग्रुप दे सकता हूँ, क्योंकि उसकी बॉडी में जाके वो कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं AB के। AB के अंदर कोई एंटीबॉडी है नहीं। एंटीबॉडी क्या होता है, वो डिफेंस सिस्टम में वर्क करती है ना। तो AB के अंदर एंटीबॉडी, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं है AB ब्लड ग्रुप के लिए, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अगर हम कोई भी ब्लड ग्रुप देंगे, अगर मैं AB पर्सन को A ब्लड ग्रुप देता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं AB ब्लड ग्रुप को, AB एक पर्सन है, उसको A ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं, उसकी बॉडी में A ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं, तो उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो वहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो डाउट A वाला एंटीजन जरूर एंटर करेगा, लेकिन वहाँ पे कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई रिएक्टिविटी वहाँ पे कुछ इनिशिएट नहीं होगा, रिएक्शन कोई स्टार्ट नहीं होगी। तो इससे क्लियर होता है कि O इज़ यूनिवर्सल डोनर, सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। AB इज़ यूनिवर्सल रिसीवर, सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है। सो हेयर इन द फोर्थ कॉलम O ब्लड किससे ले सकता है, डोनर का कौन सा ब्लड ग्रुप हो कि A को हम पहले डिस्कस करते हैं। A किस किस से ब्लड ले सकता है, डोनर का कौन सा ग्रुप हो जो A के लिए सुटेबल है, तो A वाला A से तो लेगा ही लेगा, और O यूनिवर्सल डोनर है तो O सभी को दे सकता है ब्लड, तो यू कैन टेक द ब्लड फ्रॉम A एंड O। इफ़ द पर्सन इज़ B ब्लड ग्रुप, अगर वो B ब्लड ग्रुप का है तो वो B और O दोनों से ले सकता है। अगर वो AB का है तो AB इज़ यूनिवर्सल रिसीवर, तो AB कहता है कि हमें A ब्लड ग्रुप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, B दे सकते हो, AB दे सकते हो और O, लेकिन O ब्लड ग्रुप O से ही लेगा, ठीक है। डोनेट सभी को करता है O, लेता O ब्लड ग्रुप से ही है, ठीक है। तो नीचे लास्ट वाले पैराग्राफ में मेंशन भी किया हुआ है कि O इज़ यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मीन्स यूनिवर्सल रिसीवर। यस, नेक्स्ट इज RH ग्रुपिंग। मैंने आपको बोला कि ब्लड ग्रुप को हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो ABO सिस्टम किसने दिया, कार्ल लैंडस्टीनर, और एक हम RH ग्रुपिंग के बिहाफ पे हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि O ब्लड ग्रुप है लेकिन O पॉजिटिव है, B है तो B पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिंबल क्यों आता है, बेसिकली एक एंटीजन होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, और वो एंटीजन जो होता है वो मंकी के साथ मैच करता होता है। मतलब अगर मेरे ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट है और वो एंटीजन सेम एज इट इज़ मंकी में भी प्रेजेंट है वो, तो मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करो, एक एंटीजन मेरे ब्लड में प्रेजेंट है और वो एंटीजन सेम मंकी के ब्लड में भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव सिंबल में आ जाऊँगा। देखो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, अनदर एंटीजन द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसेस मंकी। RH एंटीजन जो बिल्कुल रिसेस मंकी के सिमिलर है, वो इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC के ऊपर वो एंटीजन भी मिलता है, ठीक है। लगभग 80% पॉपुलेशन में एंटीजन वो मिलता है मंकी वाला सेम।
तो सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव। तो आप मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश भी करते हैं कि रैंडम हम इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब 100 पीपल्स हैं हमारे पास, तो हम उनसे ब्लड ग्रुप जब चेक करेंगे तो लगभग 70 to 80 पीपल्स जो होंगे उनके ऊपर वो एंटीजन मिलेगा, इसलिए उनका हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में रखेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए बी और ओ, लेकिन एंटीजन अलग कैटेगरी से हम चेक करते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करेंगे। तो दोज इन वूम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, जिनके अंदर एंटीजन एब्सेंट होगा तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप में आ जाएगा। अब आता है कि इस पॉजिटिव नेगेटिव का बेनिफिट क्या है। देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है हम बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ करेंगे। जब हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें एंटीजन को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा। देखो इसमें एन RH नेगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एक नेगेटिव पर्सन है नेगेटिव ब्लड ग्रुप का, उसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी जरूर बन जाएगी एंटीजन के लिए। कौन सा एंटीजन के लिए? RH एंटीजन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें ब्लड ट्रांसफ़र करने से पहले इसको मैच करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे। यस, देखो यही एक सिचुएशन है। पहले ये प्रेगनेंसी की सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, अगर आप इसको देखोगे ढंग से आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट टाइम अगर एक कपल जो है वो प्रेग्नेंट हो रहा है तो उसमें देखो फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मदर का नेगेटिव है। मतलब कि ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए बी और ओ। हम एंटीजन की बात कर रहे हैं, कौन से एंटीजन की? RH एंटीजन की। तो अगर फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, और फीटस जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसके अंदर अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, लेट्स सपोज मदर इज ए नेगेटिव, ठीक है, और फीटस जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में डेवलप हो रहा है वो हो गया बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो डिलीवरी होगी, मतलब फर्स्ट टाइम जो बर्थ लेगा बेबी, ठीक है, तो फीटस का जो ब्लड है वो मदर के कॉन्टैक्ट में आ जाता होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन होता है मदर और फीटस का, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा वगैरह, ठीक है, ये आपने सुना होगा 10th क्लास में। तो उसको जब हम कट आउट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो एक्सपोज हो सकता है फीमेल मदर बॉडी के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट डिलीवरी तो सेफ होगी, देखो एरो के साथ लिखा भी हुआ है, फर्स्ट न्यूबॉर्न इज सेफ, बट मदर के अंदर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट डिलीवरी सेफ है लेकिन मदर के अंदर एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड टाइम जब वो प्रेग्नेंट होता है कपल, सेम कपल, ठीक है, फादर क्या था? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, मदर नेगेटिव थी, फीटस दोबारा पॉजिटिव हो गया, फीटस क्या हो गया? दोबारा पॉजिटिव। अब मदर में उस पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान नहीं करेंगे, अगर ब्लड कंटेक्ट में आ जाता है तो उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब सेकंड टाइम अगर सेम दोबारा प्रोसेस रिपीट होगी तो वो एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है, किसके अगेंस्ट बनी हुई है? पॉजिटिव के अगेंस्ट बनी हुई है। तो वो क्या करेगा? देखो इसमें एरो के कंटिन्यू कर रहे हैं हम येलो एरो के अकॉर्डिंग, कि रैपिड प्रोडक्शन ऑफ IgG इज एंटीबॉडी, IgG इज एंटीबॉडी। तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो चुकी थी वो क्या करेगी? प्लेसेंटा ब्लड से पास होके, प्लेसेंटा से पास होके वो फीटस के RBC तक पहुंच जाएगी, फीटस के RBC तक पहुंच जाएगी और फीटस के RBC को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय। फीटस के RBC को क्या कर देगी? वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो न्यूबॉर्न होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टियोसिस फिटियलिसिस। ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ उसके अंदर हो जाती है, ठीक है, और इसमें मेनली जो होता है RBC डैमेज हो चुके होते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होगे इसका रिजल्ट क्या होता है? न्यूबॉर्न हीमोलिटिक एनीमिया मतलब कि उसके अंदर RBC का कंटेंट काफ़ी कम है, ठीक है। माइल्ड केसेस हैं, मतलब अगर वो ज़्यादा अटैक नहीं हुआ एंटीबॉडी का फीटस के ऊपर तो उसे एनीमिया होगा, जॉन्डिस हो सकता है। अगर सीवियर अटैक है तो ऑटोमेटिकली उसका CNS भी डैमेज हो सकता है और डेथ हो सकती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टियोसिस फिटियलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्यों बोल रहे हैं इसे हम? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा प्रेगनेंसी के टाइम। फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ है, सेकंड में अगर सेम केस रिपीट होता है तो एंटीबॉडी मदर की डिस्ट्रॉय कर देगी फीटस को, ठीक है। नेक्स्ट, यस,
ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें मतलब एक तो हमें ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूज़न का भी हमें ध्यान रखना होता है। सेम जो अभी मदर फिटस वाला कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है, ये हमारे अगर हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं ना एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तब भी हमें ये सिचुएशन ध्यान रखनी होती है पॉजिटिव नेगेटिव की। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप अगर हम गलत आ जाता है, ठीक है, पेशेंट के अंदर, तो उसको ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके अंदर एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर सेकंड टाइम सेम हम रिपीट करेंगे, एरर सेम रिपीट होगा, तो उस पेशेंट में भी यू कैन से डैमेज हो सकता है, उसकी बॉडी को भी डैमेज हो सकता है, जैसे फीटस को डैमेज हुआ है। ठीक है, सो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।